Hello friends, my name is Ashok Sen Gupta, working as Assistant Professor in School of Management Sciences, Lucknow. Today, our topic of discussion is post-merger EPS. This topic belongs to Financial Management and Corporate Finance subject in MBA program. So, today we discuss about the earning per share EPS in merger. Okay. So, in previous topics, in previous lectures, we discussed about the various concept of mergers, acquisitions. We understand that what is merger, when two companies Y and B merged with each other, it become AB and is a merger. When A acquired B and there is no entity of B, there is acquisition. Again, we understand in previous topics, in previous lecture about the synergy. Synergy means how two companies join together and why they join together. There are three basic reasons: that they get benefit of revenue, they get the benefit of cost, and third, they get benefit of the financial benefits. So, what are pro forma earning per share or EPS? Pro forma earning per share is the calculation of EPS assuming a merger acquisition take place and all financial metrics as well as number of shares outstanding are updated to reflect the transactions. Pro forma in Latin word means for the sake of form. In this case, it refers to calculating the EPS for sake of form in the event of acquisition. When we are going to acquire, what is the EPS? Basic EPS is calculated by dividing a firm's net income by its weighted share outstanding. The pro forma EPS other hand added the target firm's net income and they additionally synergize or incremental adjustment to the numerator, while adding new shares issues due to the acquisitions. So, basic EPS is calculated on the basis of when new shares added in the portfolio, or you can say new share is added because company acquire another company. So, what will be the new EPS? This is the concept of this topic. This is the small example of a Tesla company where the market was 320.84 and you can see EPS is minus 4.470. So, you can check the EPS by various sources nowadays in open market, and you can find out the EPS of any company post merger and pre-mergers. Okay. The formula is acquired net income plus target net income, acquire net income plus target net income plus minus incremental adjustment. Acquirer shares outstanding divided by this is divided by acquirer share outstanding plus new issue shares plus new issue शेयर्स. तो टारगेट कंपनी के इनकम, एक्वायर कंपनी के इनकम दोनों को जोड़ेंगे, एक्वायर शेयर्स कितने थे और न्यू शेयर्स कितने और जुड़े, वो होगा हमारा
EPS। अगर मान लेते हैं बैंक ऑफ बड़ौदा ने एक्वायर किया विजया बैंक को। अब आपके पास बैंक ऑफ बड़ौदा के कितने शेयर्स हैं? अगर आपका विजया बैंक के शेयर्स हैं तो उसके बदले में बैंक ऑफ बड़ौदा के कितने शेयर मिले? तो अगर क्लाइंट ने, कस्टमर ने बैंक ऑफ इस ऑफर को मान लिया है तो बैंक ऑफ बड़ौदा को उतने शेयर्स को देने पड़ेंगे जो रेशियो डिसाइड किया गया होगा। तो अब ये जो हुआ, ये हुआ न्यू शेयर्स, ये हुआ न्यू शेयर्स। जब एक्वायर की वाली कंपनी के क्लाइंट्स को शेयर्स दिए जाते हैं, दैट इज न्यू शेयर होल्डर। सो अब बैंक ऑफ बड़ौदा ने के अपने शेयर होल्डर्स थे, विजया बैंक के अपने शेयर होल्डर्स थे। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विजया बैंक को एक्वायर किया, शेयर होल्डर्स के पास लेटर गया, ईमेल गया कि वी आर गोइंग टू ऑफर सच दीज शेयर्स इन द रेशियो ऑफ, कि आपके पास अगर विजया बैंक के 10 शेयर हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास, एग्जांपल ले लेते हैं, विजया बैंक के 10 शेयर हैं तो आपको BOB के 2.5 शेयर मिलेंगे। टेक एग्जांपल, तो किसी के पास अगर 10 शेयर हैं तो उसे ऑटोमेटिकली 2.5 शेयर मिल गए। तो ये 2.5 शेयर 2.5 शेयर आर इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट और न्यू शेयर्स Pro forma merger is used by the acquiring company to determine the financial outcome they will have to acquire the target or merger with the target. This allows the acquirer to determine whether this transaction will accretive or dilutive and cause a protective effect on their EPS. Note that simply analysis and acquiring or merger on the basis of EPS is not recommended. There are situations where EPS can increase, but the value of merger firms is lower than sum of acquired target. Again and repeat, it cannot be, the note simply analysis in merger acquisition is not recommended. EPS can increase, but the value of merger firms is lower than the sum of acquired target. Therefore, when merger and acquisitions, we have to need to calculate the EPS with proper formula, What is incremental adjustment? These are additional value in term that are created when two firms combined with impact of performance. पहली बात कि जब दो फर्म एक साथ जुड़ती हैं तब नई जो वैल्यू होती है उससे हमें जो भी EPS निकल के आता है उसको हम परफॉर्मा अर्निंग पर शेयर बोलते हैं। सेकंड, इंक्रीमेंटल टैक्स आफ्टर इंटरेस्ट that come from new debt finance, So, incremental after tax interest expenses that come from new debt finance. अगर आपने पैसा फाइनेंस से लिया है, डेप्ट से लिया है, तो इंक्रीमेंटल आफ्टर टैक्स एक्सपेंसेस दैट्स कम आफ्टर
आफ्टर टैक्स सिनर्जी, आफ्टर टैक्स सिनर्जी भी इजी हो जाता है। गेन इन एसेट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस राइट अप होते हैं। क्यों किया जाता है एडजस्ट, इंक्रीमेंट एडजस्टेड? तो फिर से बता रहा हूँ, पहला कि भाई अर्निंग पर शेयर चेंज होता है। सेकंड, अगर हमने डेप्ट फाइनेंस लिया रखा है तो आफ्टर टैक्स, आफ्टर इंटरेस्ट उस पर भी फर्क आएगा, टैक्स पे फर्क आएगा। डेप्रिस, क्योंकि आपने एक्वायर कर लिया तो उसके सारे एसेट्स आपके, सारी लायबिलिटीज़ आपकी। जब एसेट्स आपके, लायबिलिटीज़ आपकी, एसेट्स आपके, तो एसेट्स का डेप्रिसिएशन भी कंपनी का, उसी कंपनी। जब डेप्रिसिएशन आ गया तो डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑल्सो भी नीड टू कैलकुलेट। लॉस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ कैश, ऑफ कॉस्ट ऑफ कैश बैलेंस is used in to finance the acquisition. Third is lost opportunity of cost of cash balance. Cost of cash balance is used to finance the acquisition. Save after tax interest, save after tax interest from the liquidation target debt. Save preferred stock dividend payment from liquidation or conservation target. So, these are the points which need to consider and we need to understand incremental adjustment. जो हमने बात करी, ये क्या होता है? जो टैक्स, आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट रेट है, एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेशंस हैं, ये सब एडजस्ट किए जाते हैं आफ्टर वाइल डूइंग एक्विजिशंस एंड मर्जर्स। For example, a manufacturing company merged with transportation firm. Due to this merger, the manufacturing firm can save on their original distribution cost, which were initially paid out to third party. Because they can now use the asset of transportation, they realize after saving of $50 million. The incremental adjustment after tax synergy rise from those taxes $50 million, which did not originally exist when firm are separate. जब दोनों फर्म अलग अलग थी तब ये नहीं होता था। अब क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने कोई पेन बनाया उस और कोई कुछ भी बनाया, उसको ट्रांसपोर्ट तो करना है। पहले वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है वो किसको दे देता था? थर्ड पार्टी को दे देता था। आज वही उस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को नहीं देना पड़ता। ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़रूर लगता है, ड्राइवर हैं, पेट्रोल है, डीजल हैं, जो भी आप मेंटेनेंस है, तब भी वो $50 बचा लेता है वो कंपनी इतना। दिस इज अ सिनर्जी, दिस इज द इंक्रीमेंटल एडजस्टमेंट आफ्टर टैक्स, जो कि पहले नहीं होता था जब दोनों कंपनी सेपरेट थी। इसी में हम बात कर सकते हैं कोई और कंपनी की। जैसे मैंने बताया कि भाई एक कंपनी है, दो कंपनीज ए मान लेते हैं, रॉ लेदर बनाती थी, फ्रेश लेदर्स, फिनिश लेदर्स ओनली फॉर शूज़, फॉर बैग्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी थी। अब एक दूसरे से वो मर्ज हो गई या एक्वायर कर लिया, तो क्या हुआ कि मेरे लिए जो रॉ मटेरियल था वो अवेलेबल इजी है, जो कि शू था, शू के लिए रॉ मटेरियल होता है। अब मैं इजीली से अवेल कर पाएंगे और इससे अवेल करने से एडजस्टमेंट जो हमारी प्राइसिंग है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा माल, एक्स्ट्रा रॉ मटेरियल हुआ करता था, जिसके हम अदर बैग्स, पर्स, लेदर बेल्ट्स, वुमेन एसेसरीज लेदर्स की,
वो उसके लिए वो उसका अलग मार्केट हमारा बना हुआ है, तो हम उसको अलग भेज देते हैं, तो इससे अर्निंग हमारी अलग हो रही है, इससे मेरी अर्निंग अलग हो रही है मेरी कंपनी में। और जो रॉ मटेरियल मेरे जूतों के लिए बन रहा था वो मेरी कंपनी बना रही है, क्योंकि मैंने एक्वायर कर लिया। और जब मैंने आपको अपने वही कंपनी एक्वायर कर लिया तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाएगी, या हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन हमारा थर्ड पार्टी है, ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ेगा, पर रॉ मटेरियल कॉस्ट में कमी आएगी। क्योंकि जो प्रॉफिट चार्ज बाई पहले वो अब दूसरी कंपनी चार्ज करती थी, मार्जिन पे काम करते थे हम लोग, अब वो मार्जिन हम अपने में नहीं लेंगे ना, तो दिस कैन बी पॉसिबल। This is a simple tabular form where earnings of acquirer target company is 5,000, 2,000, total 7,000, number of shares 200, 2,500। टारगेट कंपनी की ज़रूरत नहीं है नंबर ऑफ शेयर्स जानने के लिए, क्योंकि उसको मतलब नहीं है कोई हमें। अर्निंग पर शेयर 2। तो अब हमें ये देखना है कि इसको कितने शेयर्स दें शेयर होल्डर को। तो इन्होंने एडजस्ट कर दिया 675 शेयर्स। पहले कितने शेयर होल्डर्स थे उससे कोई मतलब नहीं है, हमने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सिर्फ 675 शेयर देने हैं। वो किस रेशो में देने हैं वो देख लें। हम अगर 10,000 भी हैं पर हमें 675 देना है तो रेशियोज बदल जाएगा। तो अगर पुराने ये टारगेट कंपनी के 10,000 शेयर होल्डर्स हैं, 10,000 नहीं मानते, चलो कम कर देते हैं 3,000 शेयर, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमने नया जो शेयर बोला कि हम 675 शेयर्स देंगे, तो हमने 675 शेयर्स हमने इशू करना है। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर मेरे हो जाएंगे ये। जब दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो मेरा अर्निंग पर शेयर जो है वो ईपीएस मेरा बढ़ जाएगा, मेरा ईपीएस बढ़ जाएगा। तो ईपीएस में चेंज कितना हुआ 20%, ईपीएस में चेंज 10%, तो ईपीएस में चेंज कितना हुआ 10%। सो हियर व्हाट हैपन व्हेन वी एक्वायर टू द टारगेट कंपनी, आवर structure or financial structure changes. It also helps to our shareholders. कभी कभार शेयर होल्डर्स को डर लगता है कि कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर होल्डर को भी ले लिया है, उसके भी शेयर होल्डर्स हैं, अब हमारे कंपनी के शेयर होल्डर 5 लाख, उसी कंपनी के शेयर होल्डर 3 लाख, टोटल शेयर होल्डर हो गए 8 लाख। अब कंपनी की अर्निंग अगर ज़्यादा नहीं हुई तो अर्निंग पर शेयर कम हो जाएगा। तो उस अर्निंग पर शेयर को मेंटेन रखने के लिए वी नीड टू डू द एडजस्टमेंट, मेरी कंपनी के जितने शेयर हैं, अगर मैं किसी एक्स कंपनी को एक्वायर कर रहा हूं, उसकी कंपनी कितने शेयर है मतलब मुझे पता नहीं, हमें ऑफर देंगे कि हम इतने शेयर दे सकते हैं, या एक रेशो दे सकते हैं 100:10, जिसका 100 है 10 मिलेंगे, जिसका 10 है उसको 1 मिलेगा, जिसके पास 1000 है उसको 100 मिलेंगे। एंड इट इज नॉट ऑल्सो कंपल्सरी, क्लाइंट कैन विड्रॉ, क्लाइंट कैन सेल देयर शेयर व्हेन दे आर अमलगमेशन और मर्जर एक्विजिशन अनाउंस्ड। आप अपने शेयर बेच दीजिए, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे कंपनी के शेयर लीजिए। तो वी ऑफर यू द शेयर्स अकॉर्डिंग टू अस। सो व्हाट हैपेंड, द एक्वायरर हैज टोटल अर्निंग ऑफ 5,000। खरीदने का तो 5,000 शेयर थे, एंड शेयर आउटस्टैंडिंग 2500, तो 5 डिवाइडेड बाई 2500 2, तब कितना ईपीएस आता था 2। अब द टारगेट कंपनी बीइंग एक्वायर्ड विद टोटल अर्निंग ऑफ 2000, अब टारगेट कंपनी जो है जिसको हमने खरीदा उसकी अर्निंग थी 2000,
नंबर ऑफ शेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। इन एडजस्टमेंट कॉलम द एक्वायरर इशू 675 न्यू शेयर, उसने 675 न्यू शेयर इशू कर दिए बस। There is no adjustment to the earning either company as a result of the transaction. This is keep it simple, but it is realistic. There can be the pro forma column. Sum of all earning is now all share outstanding is divided by total sum of share outstanding. जैसे हमने किया यहाँ पे देखिए, हमने सम ऑफ परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर किया ये टोटल कर दिया और इसको भी जोड़ दिया। तो नंबर ऑफ शेयर ईपीएस पहले जो था, ईपीएस पहले जो था 2 था, आज वो ईपीएस हो गया दिस डिवाइडेड बाय दिस 2.20। और अगर हम चेंजेस देखें, then there is a changes of 10% in EPS. There is a change in 10% of EPS. Understand? So this is what happen while we do the pro forma post EPS. This is what we do the post EPS. Since we know that EPS is a basic factor where shareholder can understand what he earned, and from that earning we provide the dividend. So, if you in the share market and you need to provide the dividend to the shareholders, and now you become acquirer. अगर आपने किसी कंपनी को खरीदा है और शेयर मार्केट में भी हैं आप एक्वायरर हैं, तो आपको सारे शेयर होल्डर्स को मेंटेन करना है। यू हैव टू वरी अबाउट दैट, यू नीड टू वरी अबाउट दैट। अदरवाइज एक्विजिशन के बाद पता लगा शेयर होल्डर्स नाराज़ हो गए, उन्होंने अपने शेयर्स आपके शेयर सेल आउट कर दिया, तब क्या होगा? सो पोस्ट अर्निंग्स या ईपीएस में ये ध्यान रखना पड़ता है, वी नीड टू फाइंड आउट, ये हमें पता रखना पड़ता है कि कैसे हम अपने शेयर होल्डर्स की ईपीएस को बनाए रखें, कैसे एडजस्टमेंट करें। देखिए यहाँ देखिए चेंजेस आ रहा है ना, क्लोजिंग स्टॉक ईपीएस दे रखा है माइनस में, तो ईपीएस माइनस में हो गया। यहाँ पे आप कोई भी कंपनी उठाइए जो पहले कुछ थी और आफ्टर मर्जर क्या हुआ उसका। हम बैंक की बात करते हैं तो हम ये एनालिसिस कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा मर्जर हुआ है। इट्स मतलब बैंकिंग सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर बैंकिंग सेक्टर में, जहाँ पर banks are merged. So what happened with their shareholders? Their shareholdings are also changes. जैसे कि मैंने फिर बता रहा हूँ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक को एक्वायर किया या आंध्रा बैंक मर्ज हो गया, आंध्रा बैंक की ट्रेडिंग शेयर्स खत्म हो गई, आंध्रा बैंक का शेयर ट्रेड नहीं हो रहा है मार्केट में, पर यूनियन बैंक का हो रहा है। अब आंध्रा बैंक के कितने आपके शेयर आपके पास थे और आपको यूनियन का कितना मिला, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि यूनियन बैंक ने ऑफर किया होगा कि भाई इतने % शेयर हम शेयर होल्डर्स को देंगे जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि हम अपने शेयर होल्डर्स का पार्ट कैसे अब कम कर दें। तो अगर ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स होंगे और प्रॉफिट अर्निंग कम होगी तो अर्निंग पर शेयर वैसे ही कम हो जाएगा। तो मेंटेन द अर्निंग पर शेयर, दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग हैव टू रिक्वायर्ड, दिस टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग मस्ट रिक्वायर्ड। Getting the things. So
Pro forma EPS is the calculation of EPS assuming a merger and acquisition take place on financial metrics. The basic calculation on the financial is based on target company, synergy, initial adjustment. मैं एक रिकैप इसलिए कर रहा हूँ कि आप लोगों के और दीज आर द टेक्निकल थिंग्स यू एज अ फाइनेंस गाय, एज अ फाइनेंस पीपल और फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें जाने, क्योंकि दीज आर द currently these things are going on the market. फॉर्मूला क्या होता है? एक्वायरर नेट इनकम, टारगेट का नेट इनकम प्लस और माइनस एडजस्टमेंट किया जो गया है, डिवाइडेड बाई एक्वायरर शेयर्स आउटस्टैंडिंग प्लस न्यू शेयर जो उन्होंने इशू किया। इंक्रीमेंट एडजस्टमेंट क्या क्या होता है? टैक्स एनर्जी, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी, टैक्स सेविंग मेथड, सेविंग परफॉर्मेंस, डिप्रिसिएशन एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ओके, दीज कैन बी टैक्स एनर्जी होती है। मैंने न्यूमेरिकल कराया, जैसे इसमें देखिए फिर से बता देता हूँ। पुराना इतना था, टारगेट का अर्निंग इतना, टोटल इतनी हो गई 7,000, पुराना शेयर इतना था, टारगेट कंपनी के बाद कितना था कोई ज़रूरत नहीं है, 625 रुपये हमने उनको ऑफर किए, टोटल शेयर हो गए 3, हमारा अर्निंग पर शेयर होगा दिस डिवाइडेड बाई दिस, पुराना था 2, तो अर्निंग पर शेयर भी इंक्रीज हुआ, शेयर होल्डर्स भी खुश हो गए, एंड आवर एक्विजिशन विल गेट सक्सेसफुल, आवर एक्विजिशन विल गेट सक्सेसफुल। So, today my dear friend, I ended this topic and hope you understand the concept of EPS, post EPS pro forma, where we add the income of the acquirer company and target company and divided the outstanding share of the acquirer company and adjusted shares. So, find out the new EPS which help to maintain the balance between the equity shares holder of both companies after merger. So, hope you understand the video. Thank you for watching.